Hello students, I am Deepak from New Catholic Mission School Jhabua and I am here with the new lesson. Name of the lesson is lesson 6, Temperate Grasslands. Now as we can see here the map of the world, the 7 continents as we can see here on the screen. Now today we are going to study about the green portion which we can see here on the screen, the green color. We are going to study about this green portion, the temperate grasslands. Grasslands means जो घास का एरिया होती है, बड़ी बड़ी घासें होती है, जो हमने देखा होगा आमतौर पर ग्राउंड्स पे या कोई से भी एरिया में देखे होंगे जो घास होती है, पर ये पोर्शन जो होता है जो एरिया पूरा ही घास से कवर होता है, इन एरियाज के बारे में हम इस लेसन में स्टडी करेंगे. फर्स्ट, लोकेशन. As we can see here on the screen, ये ग्रीन पोर्शन ये है इनकी लोकेशन. अभी इनके बारे में स्टडी करते हैं. टेम्परेट ग्रासलैंड्स कैन बी सीन in both the southern hemisphere and the northern hemisphere. As we can see here on the screen, we can see even in the northern hemisphere and even in the southern hemisphere. So it can be seen in both the hemispheres. In the northern hemisphere, they are separate across Asia, Europe and North America. Now they are separate. As we can see, Asia is separate, Europe is separate, Africa is separate, South Africa is separate, Australia is separate, North America is separate. All these grasslands are separate from each other. In the southern hemisphere, they can be seen in the South America, Australia and New Zealand and South Africa. They are all in the southern hemisphere. They are, as we can see here on the screen, they are separated from another places. Now, which kind of climate they have? As we can see here on the screen, the temperate grassland is the northern hemisphere experience extreme hot and cold climate. Now, this kind of climate where we can see the big ground of grasses, ये जो ग्रास के जो बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं, यहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है? एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड. यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है. This continental type of climate is characterized by hot summer and cold winter and little rainfall. अभी यहाँ पे क्या होता है? इस एरिया में यहाँ पे हॉट समर तो होती है, कोल्ड विंटर भी होती है एंड लिटिल रेनफॉल, मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश भी होती है जो इनके लिए सफिशिएंट होता है. नेक्स्ट, the grassland in the southern hemisphere are located along the sea's coast and hence have a more moderate climate than the grasslands in the northern hemisphere. अब ये जो सी के पास का एरिया होता है ना, यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ सी का एरिया है और यहाँ पे ग्रासेस है. ये यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? मॉडरेट. मॉडरेट मीन्स ना ज़्यादा ठंडी, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा बरसात, ना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, सब एकदम मॉडरेट मीन्स सफिशिएंट होता है यहाँ पे. The southern temperate grassland are neither too hot nor too cold and get a sufficient amount of rainfall. As I said, यह जो एरिया होता है इस एरिया में ना ज़्यादा पानी गिरता है ना ही ज़्यादा रेन गिरती है. Cultivating of crops is possible in here grassland. So यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए ये प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. इस एरिया में सफिशिएंट वाटर मिल जाता है तो ये समर सीजन में भी यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं. Strong winds blow in the temperate grassland as the vegetation here primarily consists of grasses with little or not trees. Now as we can see here on the screen, यहाँ इस लैंड पे जो ट्रीज होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, पर जो ग्रासेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेती है, पर जो ट्रीज देखने को मिलते हैं यहाँ पे वो बहुत कम देखने को मिलते हैं. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. नाउ वेजिटेशन मीन्स विच काइंड ऑफ प्लांट्स, trees, all this comes in vegetation, and wildlife means animals, the creatures which comes in wildlife.
The vegetation in the temperate grasslands primarily include tall and short grasses. Now the vegetation in the we are studying about grassland. Now grassland में क्या होती है, short type की grass, बड़ी grass, सभी mixed यहाँ देख सकते हैं जैसे कि हम स्क्रीन पे, this tall grasses and here short grass. So different kinds of grasses as you can see here on the screen. Tall grasses grow in areas that have a continental climate. जो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मीन्स अलग अलग कॉन्टिनेंट पे अलग अलग क्लाइमेट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की ग्रासेस होती है यहाँ पे. ड्यूरिंग ऑटम्स द ग्रासेस विथ wither and turn into hair. Now what is wither? It becomes brown. The meaning of wither is brown and turn into hair. Now hair means it becomes drier, means ये सूख जाती है. A few trees grow along the coasts in the southern temperate grasslands. अभी यहाँ पे इस लैंड में क्या होता है, बहुत कम ट्रीज देखने को मिलते हैं. Now wildlife. Which kind of wildlife can be seen in the grassland? The grassland in the temperate zone are inhabited by a variety of grazing animals and rodents. Now what is grazing? As you can see, the animals which can be जो घास खाते हैं उनको बोलते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स. एंड रोडेंट्स एनिमल्स, as you can see here, rat, rabbit, this kind of animals are known as rodents animals. Wildlife are found in the grassland. और इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग टाइप के वाइल्ड लाइफ इसमें देखने को मिल सकती है. Bison are commonly found in the grassland of North America. Now what is bison? Here is the picture of a bison. And lion, elephants and antelopes are found in the grassland of South Africa. This kind of animals are found in South Africa. While the Australian grasslands are home to koala bears. Now what is koala bears? Here is the picture of koala bear. Kangaroos, we have seen kangaroos in movies, but in the TV or wherever we have seen. Here is the picture of kangaroo. And wallabies. Wallabies is this kind of animals. जो kangaroos होते हैं ना, उसी के छोटी साइज के ये एनिमल होते हैं, वो सेम kangaroo टाइप के ही दिखते हैं. Cattle are the most important animal across all grassland. Cattle means जिसको इंसान क्या करते हैं, पालते हैं, जैसे कि cow, goat, sheep, all these kind of animals are known as cattle. लाइफ इन द ग्रासलैंड. अब किस टाइप की लाइफ होती है ग्रासलैंड में, किस टाइप के लोग मिलते हैं, किस टाइप के पीपल, वो हाउ दे लिव, हाउ दे ईट, हाउ दे ड्रेस अप, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस लाइफ इन द ग्रासलैंड्स. The major occupation of the people in the temperate grassland is agriculture and livestock farming. Now ये क्या करते हैं लोग यहाँ के, हमेशा क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, जिससे फार्म करके ये अनाज उगाते हैं और उसको सेल कर देते हैं और उसी से इनका घर चलता है. Since the grassland have rich soil, people here grow a variety of food crops such as corn, wheat, barley, oats and soybeans. As we can see here the pictures of all these crops. This kind of crops can be, they grow in this land. Another major economic activity of the people is livestock rearing. Now what is rearing? Rearing means people, जो लोग जो एनिमल्स होते हैं उनको पालते हैं और उन्हीं से उनको यही वर्क होता है, उनको पालने का, छोटे से लेके बड़ा करना, उनको सेल करना, उनके यूज करके उनका जो भी यूज करके उनका अर्निंग होती है, वो सब इसी से करते हैं. पीपल इन द ग्रासलैंड लिव और यूज फार्म्स दैट आर कॉल्ड ranches or homesteads in North America. Now this is the picture of ranchers who जो ये एनिमल्स को पालते हैं. एंड होमस्टेड इन नॉर्थ अमेरिका, जो होमस्टेड होते हैं वो नॉर्थ अमेरिका में होते हैं. एंड स्टेनियस इन साउथ अमेरिका, जो पीपल साउथ अमेरिका में होते हैं वो जो स्टेंसियस होते हैं उनको
ये जो पालने वाले लोग होते हैं उनको ये कहते हैं। केटल्स आर रेयर्ड या फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट्स। नाउ केटल्स क्यों यूज करते हैं? डेयरी प्रोडक्ट, ताकि मिल्क प्रोड्यूस, वो उनसे मिल्क ले सके और उसको सेल कर सकते हैं। मीट, जो मीट का यूज करते हैं खाने वगैरह के लिए, उसका यूज करते हैं। शीप रेयरिंग इज प्रैक्टिस फॉर बोथ मीट एंड वुल। अभी मीट के लिए भी यूज करते हैं जो शीप होती है उसका, और वुल के लिए जो ऊन उससे मिलता है, और गर्म कपड़े जो बनाए जाते हैं वो वुल से बनाए जाते हैं। इन मेनी पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। As you can see here on the screen, शीप में से वुल निकाल रहे हैं। Some part of temperate grassland are inhabited by nomadic tribes like Kyrgyz in Central Asia. Here is the picture of this Kyrgyz. This is the picture of Kyrgyz tribe and Hontentos in South Africa. Now here is the picture of Hontentos tribe. The people belong to these tribes are nomads, that is they have no fixed home and travel from one place to another. Now इनका क्या होता है, एक भी परमानेंट घर नहीं होता है। जैसे कि कोई भी एरिया में ग्रास अगर खत्म हो गई तो वो दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं। With their herds, cattle, sheep, goats and horse, जो अलग अलग टाइप के वो केटल्स जो भी वो पालते हैं, उनके साथ वो दूसरी प्लेस पे मूव कर देते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, जैसे ये हॉर्स हैं और कैमल है, ये लेके दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं। प्रेराइज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेराइज? The vast grasses in North America also known as prairies, जो नॉर्थ अमेरिका में बड़ी बड़े ग्रास लैंड होते हैं जहाँ बहुत सारी ग्रास होती है उसको बोलते हैं प्राइजेस। अब जो नॉर्थ अमेरिका में होती है, तो अभी इसके बारे में स्टडी करेंगे। एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको, जो कहाँ से कहाँ तक है? नॉर्थ अमेरिका से कनाडा टू मैक्सिको, वहां तक ये एरिया देखने को मिलता है। Drained by the Mississippi and the Missouri River, the land is extremely fertile. अभी जो यहाँ पे ड्रेन्ड मीन्स ड्राई, जो ड्राई रिवर है वहाँ पे मिसिसिपी एंड मिजोरी रिवर, ये क्या ड्राई रिवर है। तो यहाँ की जो रिवर है वहाँ की जो प्लेस है वो एक्सट्रीमली फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से खेती की जा सकती है, फार्मिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है यहाँ पे। Like all other northern temperate grasslands, the prairies to have an extreme climate with hot summer and cold winter. अभी यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? एक्सट्रीम हॉट। एक्सट्रीम हॉट मीन्स इट इज टू हॉट, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। एंड टू कोल्ड, यहाँ पे बहुत ज्यादा विंटर के दिनों में बहुत ज्यादा ठंडी होती है। The prairies receive rainfall during summer, जो समर सीजन होता है वहां पे उसमें बहुत ज्यादा क्या होती है? रेनिंग होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनिंग भी होती है, इसलिए यहाँ पे ये एरिया क्या होता है? यहाँ पे बहुत ज्यादा फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी प्लेस होती है यहाँ पे। द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, अब वो ऑक्यूपेशन मीन्स विच काइंड ऑफ वर्क दे डू, तो वो किस टाइप के वर्क वहां पे करते हैं। द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स मेंटेन लार्ज फार्मर्स वेयर कॉर्न एंड व्हीट आर ग्रोन। अभी यहाँ पे जो यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या ग्रो करते हैं यहाँ पे? व्हीट मीन्स जो गेहूं होता है, एंड कॉर्न मीन्स मक्का। जो आप लोगों ने भुट्टे वगैरह खाए होंगे, मक्का वगैरह देखी होगी, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे इसकी फार्मिंग की जाती है, खेती की जाती है, जिसको बड़े बड़े फैक्ट्रीज में सोल्ड कर दिया जाता है और वहां से वो अर्न करते हैं। Prairies are also called the wheat basket of the world as the surplus is exported to each other nations. तो वो क्या करते हैं? एक नेशन से दूसरे नेशन में एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो वहां से ये बहुत ज्यादा उस प्लेस में अर्निंग कर लेते हैं। Here wheat is stored in tall cylinder building known as soil silos.
सॉरी सिलोस। एज वी कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, जो ये बड़े बड़े सिलेंडर्स है इसको बोलते हैं सिलोस। जो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वीट एंड कॉर्न्स ये जो कलेक्ट करते हैं, इनको ये इन सिलेंडरों में कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। Used mainly as grazing grounds, the prairies are now one of the largest cultivated land in the world and have mechanized farms. Now, what is the meaning of mechanized farm? With the help of machines, they farm a lot of seeds and whatever type of farming they are doing. जिस टाइप की भी खेती को करते हैं वो मशीन की हेल्प से बहुत जल्दी कर लेते हैं। जो भी करना काम हो बहुत इजीली वो उनका वर्क कंप्लीट हो जाता है। Corn is the main crop in the eastern prairies. Now corn, what is corn? Here is the picture of corn. जो बहुत ज़्यादा ईस्टर्न प्रेराइज में बहुत ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। While wheat is grown in the western prairies. जो वेस्टर्न प्रेराइज है वहाँ पे ये wheat की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं। Barley, oats, rye and nutritious grasses are दी अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। जो अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है इनकी भी खेती वहां पे इस एरिया में करते हैं, पर बहुत ज्यादा खेती काई की करते हैं, सीड्स एंड कॉर्न्स की। केटल रेयरिंग फॉर मिल्क एंड मीट एंड मोस्ट ऑफ द प्रोसेसर आर मैकेनाइज्ड। मीन्स जो ये मिल्क निकालने की प्रोसेस, मीट की प्रोसेस, जो भी कटिंग की प्रोसेस, ये सब कुछ कैसे होती है? मैकेनाइज्ड, मतलब मशीन की हेल्प से इजीली और फास्टर हो जाती है इनकी। The prairies are also rich in minerals such as lignite, coal and minerals oil. Now what is lignite coal? Here is the picture of lignite coal, जो आप लोगों ने कोयला देखा हो जिसको जलाने के लिए यूज करते हैं। एंड मिनरल्स ऑयल, जो मिनरल्स जो डीजल है, पेट्रोल है, ये सारा ऑयल्स मशीन्स की हेल्प से ये अर्थ में से कलेक्ट कर लेते हैं। The areas has industries such as oil refineries, air crushing factories, meat packaging and dairy farming and flour mills। ये अलग अलग टाइप की फैक्ट्रीज में इनका यूज करते हैं मशीन्स का, जिसकी हेल्प से इनका वर्क बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। People in the prairies have a high standard of living। अब यहाँ के जो लोग होते हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे अलग अलग टाइप के मिनरल्स भी मिल जाते हैं, फार्मिंग भी बहुत अच्छी होती है, तो इनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो जाती है, जिससे इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन 6। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।